زیر زبر پیش کی ٹیم جو آج ہمارے ساتھ ہیں، ٹیم زیر میں موجود ہیں حافظہ ربیہ اور سعدیہ وسیم، دوست ہیں اور دونوں میرپور خاص سے آئی ہیں اسپیشلی مقابلے کے لیے. کیا بات ہے جی. ویلکم ٹو کراچی. ٹیم زبر میں ہے سید عین علی اور سیدہ زینب زہرا، دونوں بہن بھائی ہیں. السلام علیکم. اور ٹیم پیش میں ہے شامیر حسن اور ابراہیم، دونوں دوست ہیں. آج ہماری ٹیمز کے لیے بے تحاشا تحائف ہیں جو کہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے بتاؤں کہ ہمارا جو کوئز کا مقابلہ ہے زیر زبر پیش، یہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پیارا رمضان میں کولگیٹ مسواک کی جانب سے. خوبیاں مسواک کی اور سعادت عمرے کی. ایک تو یہ بہترین پروڈکٹ ہے، ظاہر ہے مسواک کرنا سنت نبوی ہے، اور پھر مسواک کی خوبیاں اگر ٹوتھ پیسٹ میں شامل ہو جائیں تو بہترین کوالٹیز آپ کو اس پروڈکٹ میں مل رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ عمرہ پیکیجنگ والا کولگیٹ مسواک خریدیں گے تو آپ اس پر ایک طریقہ درج ہے، اسے فالو کیجئے اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے، عمرے کی ٹکٹس ملے کولگیٹ مسواک کی جانب سے. ہم انشاءاللہ اب کیونکہ تیسرا عشرہ چند لمحوں میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو ہم باقاعدگی سے اعلان بھی کریں گے آنے والے مزید خوش نصیبوں کا، جیسے ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا. شروع کرتے ہیں ٹیم زیر سے. آج میں بتا دوں کہ وہی عام طریقہ، نارمل طریقہ، شروع میں 5 سوالات تینوں ٹیم سے، اور جو بھی نتیجہ نکلے گا ہم بڑھیں گے بزر راؤنڈ کی جانب. پہلے راؤنڈ میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، لیکن 10 سیکنڈ کا وقت ہے جواب کے لیے، تو زیادہ وقت مت لیجیے گا. بزر راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ ہے. پچھلی دفعہ وہ ٹیم ہار گئی تھی جو پہلے راؤنڈ میں جیت رہی تھی، صرف اس بے وقوفی کی وجہ سے کہ انہوں نے جواب نہیں آتے ہوئے بھی جواب دینے کی کوشش کی. تو تھوڑا سا احتیاط سے. ٹیم زیر آپ سے پہلے راؤنڈ کے 5 سوالات میں پہلا سوال آج کے زیر زبر پیش کا پیارا رمضان میں یہ: حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے. بتائیں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خاص موقع پر تلاوت فرمائی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، ہجرت مدینہ کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر، یا فتح مکہ کے موقع پر؟ فتح مکہ کے موقع پر. فتح مکہ کے موقع پر کعبے سے بت گرانے کے وقت یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آج کا دن خاص طور پر 20 رمضان المبارک فتح مکہ کے حوالے سے ہم اسے یاد کر رہے ہیں. زبردست، بالکل ٹھیک جواب. کون سے نبی ہیں جنہوں نے چیونٹیوں کا کلام کم از کم 3 میل کے فاصلے سے سن لیا تھا؟ جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے. سوال نمبر 3: فتح مکہ کے دن کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت بلال بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت بلال بن رباح یا حضرت بلال بن سلامہ؟ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حسان بن ثابت، حضرت بلال بن رباح، یا حضرت بلال بن سلامہ؟ حضرت بلال بن سلام. حضرت بلال بن سلام آپ نے جواب دیا، یہ جواب غلط ہے. حضرت بلال بن رباح جو بلال حبشی کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے فتح مکہ کے دن آپ سے کہا گیا کہ دوبارہ سے اذان دی جائے، اللہ کے نام کو بلند آواز میں لیا جائے، اللہ کے پیغام کو بلند آواز میں آج مکہ کے مسلمانوں تک پہنچایا جائے. یہ وہی دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور آج ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت بلال حبشی کو حضرت بلال بن رباح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. چوتھا سوال: قائد اعظم نے 14 نکات کس سن میں پیش کیے؟ یہ تو آ جانا چاہیے یار. 1920 میں، 1929 میں، 1935 میں، یا 1940 میں؟ 14 نکات جو ہم نے ہمیشہ رٹے لگا کر کبھی سمجھے نہیں، کبھی اس کا جو اصل ایسنس ہے، کیا پیغام ہے، اس کو ہم نے بھلا کر صرف رٹا لگایا. کوئی ایک بھی بھول جاتا تھا تو آگے کے 12 بھی بھول جاتے تھے. ایسا ہی ہوتا تھا. کون سا سن؟ 1920، 1929، 1935 یا 1940؟ 1920، 29، 35 یا 40؟ وقت ختم. 1935. 1935 غلط جواب ہے. 1929، 1929 میں. بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام. شاعر کا نام بتائیے. علامہ محمد اقبال،
अब्दुर्रहमान जामी, नसीरुद्दीन नसीर या खुर्शीद अहमद? पेश को आता है? आता है पेश को? मुस्कुराहट तो बता रही है, जबर को नहीं आता, सीरियसनेस बता रही है, और जेर को भी नहीं आता, संजीदगी बता रही है। बताइए, जेर तुक्का लगा लीजिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। शेर रिपीट कीजिएगा। शेर रिपीट करूं? बेताब हो रहा हूँ फिराक़े रसूल में, एक दम की जिंदगी भी मोहब्बत में है हराम। अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कैसे लगा कि अल्लामा इकबाल का शेर है? कि वो इश्क़ रसूल पे शायरी करते थे इसलिए। क्योंकि वो इसी नौयत की शायरी हाँ, करते इश्क़ थे, रसूल। दलेर शायर थे, ये कहो ना यार। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो 50 नंबर्स होने चाहिए थे टीम ज़ेर आपके, लेकिन आपको सिर्फ मिले 30 नंबर। टीम ज़बर, आप तैयार हैं? तैयार हो तो बताओ यार, मुस्कुराहट से बताओ। पहले 5 सवाल आपसे करने जा रही हूँ राउंड 1 के। आपका पहला सवाल है ये, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, बताइए ये आयत कुरान मजीद की किस सूरत में है? सूरह मोहम्मद में, सूरह वाक़िया में, सूरह अल अंबिया में या सूरह इब्राहिम में? हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, कुरान करीम की कौन सी आयत? ऑप्शन रिपीट कर दें। जी, सूरह मोहम्मद, सूरह वाक़िया, सूरह अल अंबिया या सूरह इब्राहिम? ये आयत कुरान मजीद की किस सूरत में है? टीम सूरतुल पेश अंबिया। बहुत मुस्कुरा रही है। सूरतुल अंबिया। सूरतुल अंबिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन। नबी का नाम बताइए जिन्हें विलादत के बाद एक संदूक में बंद करके दरिया के सुपुर्द कर दिया हज़रत गया। मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन सुने बगैर। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को जिस मस्जिद में ज़र्ब लगी? मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ज़बर, ब्रिलियंट। लाहौर में जिस पार्क में करारदादे पाकिस्तान पेश की गई उसका नाम क्या है? मंटो पार्क, मीनारे पाकिस्तान पार्क, बिन कासिम पार्क या निश्तर पार्क? मंटो पार्क। मंटो पार्क, ये एक और नाम से भी मशहूर है। इस पार्क को और क्या कहा जाता है, पता है क्या? ग्रेटर इकबाल पार्क। इकबाल पार्क, जवाब आपका भी दुरुस्त है, लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जबर, इसे इकबाल पार्क भी कहा जाता है, आपका जवाब दुरुस्त था। करना है जो सर मार का जीस्त तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। क्या बात है। मिर्जा सलामत अली, कतील शिफाई, अली सरदार जाफरी या जॉन एलिया, ये शेर किसने कहा? करना है जो सर मार का जीस्त तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। ऑप्शन रिपीट करिएगा। मिर्जा सलामत अली, कतील शिफाई, अली सरदार जाफरी या फिर जॉन एलिया? मिर्जा सलामत अली दबीर। मिर्जा सलामत अली दबीर, कतील शिफाई दुरुस्त जवाब है, गलती हो गई। तो 40 मार्क्स आपके हैं, 30 आपके और 40 आपके। क्या पेश 50 ले पाएगी? मुस्कुराहट से तो लग रहा है। देखते हैं कि ये मुस्कुराहट ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है या वाकई कॉन्फिडेंस है। देखते हैं। टीम पेश, जल्दी जल्दी बताएंगे। हमने आपको रहमत बनाकर भेजा, जो सवाल पूछा था, इस आयत का निशान यानी नंबर बताइए। सूरतुल अंबिया में 110, 101, 92 या 107? देखो फंसा दिया, मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा फंसा दूंगी। अब आप लोग मुस्कुराएं। 110। 110, क्या बात है। वो तमाम मुस्कुराहटें इस पानी में चली गईं क्योंकि जवाब गलत है। 107 नंबर आयत है, इसलिए कम मुस्कुराया करें। मैं जरा खतरनाक सवाल भी पूछ लिया करती हूँ। इनमें से कौन से नबी हैं जो तवीलुल उम्र हैं, यानी उनकी उम्र सब अंबिया से ज्यादा है? जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम, जनाब नूह अलैहिस्सलाम या जनाब मसीह बिन मरियम? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। फतह मक्का जिसे हम याद कर रहे हैं, उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुसलमानों के साथ मक्का में दाखिल हुए? 10,000। 10,000 ऑप्शंस के बगैर जवाब दिया, जवाब दुरुस्त। तहरीक आज़ादी के कौन से रहनुमा हैं जो क़िबला अव्वल में दफन किए गए? मौलाना शौकत अली, चौधरी रहमत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या सर सैयद अहमद खान? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
वो खुदा का दोस्त है और दोस्त है उसका खुदा, क्यों ना हो नासिक मोहब्बत है दरे कर्रार की। शायर का नाम बताइए। मीर अनीस, इमाम बख्श, नासिक, प्रोफेसर सिब्त जाफर या जोश मलियाबादी। वो खुदा का दोस्त है और दोस्त है उसका खुदा, क्यों ना हो नासिक मोहब्बत है दरे कर्रार की। ऑप्शंस: मीर अनीस, इमाम बख्श नासिक, प्रोफेसर सिब्त जाफर या जोश मलियाबादी। इमाम बख्श नासिर। बिल्कुल सही, और शेर में ही नाम था। तो क्या बात है, इतनी अक्लमंदी से किसने ये सवाल लिखे हैं? मुझे उससे मिलना है। 40, लेकिन क्योंकि पहली वाली चीज गलत हो गई तो 40 मार्क्स आपके। 30, 40 और 40। बजर्स चेक करवाइए। टीम ज़ेर जबर पेश। टाइम निश्ता, इसलिए वक्त का मुकाबला सख्त वाली सूरत हाल। 10 सेकंड होंगे। अगर तीनों को जवाब नहीं आते तो तीनों सर हिला देंगे, हम अगले सवाल पर चले जाएंगे। आप बजर बजाएंगे, हम आपको बताएंगे पहला बजर किसने बजाया, फिर जवाब देंगे। अगर मेरे बताने से पहले किसी ने जवाब दिया तो उसको उसके सवाल का जवाब और नंबर नहीं मिलेंगे और हम अगले सवाल की जाने बढ़ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, आज 20 रमजान का दिन फतेह मक्का से मंसूब है, बताएं कल का दिन किस मोतबर हस्ती से मंसूब है। पेश। हजरत अली की यौम शहादत। बिल्कुल, यौम अली कल मनाया जाएगा और इस हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में जिक्र भी रहेगा। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने तन तनहा कौन सी सूरत मुशरिकीन मक्का के सामने तिलावत फरमाई थी जिसे सुनकर लर्जा तारी हो गया था? कुफारे मक्का के सामने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने एक सूरत की तिलावत फरमाई थी और वो तन तनहा थे उस वक्त। वो सूरत थी सूरह तौबा, सूरह बरात भी जिसको कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। शहर कराची किस समंदर के किनारे वाक़ है? पेश। बहरा अरब। बिल्कुल दुरुस्त। मुहावरा मुकम्मल करें। ये मजे वाली बात है, देखो भाई कौन बजाता है। एक अनार। जबर। 100 बीमार। बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तान ने आखिरी बार हॉकी का वर्ल्ड कप किस सन में जीता? नहीं आता। 1994। आगे बढ़ेंगे। सफेद रंग झंडे में किस बात की अलामत समझा जाता है? जबर। अकलियत। अम्न अम्न। सोच के बताओ, एक जवाब। अकलियत होगा। सफेद रंग। सवाल सुना था मेरा? अम्न अम्न। मैंने अकलियत वाला जवाब सुन लिया है, आप बताइए। अमन। अमन। मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तान के झंडे में, मैंने कहा झंडे में सफेद रंग किस बात की अलामत समझा जाता है? पाकिस्तान के झंडे में वो अकलियत के लिए है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में वो पीस के लिए यूज किया जाता है। -10, लेकिन पेश को +10 नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ले लिया था। लेकिन जो अकलियत के लिए सफेद रंग इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ उस झंडे पर सफेद रंग तक ही लग गया है, बाकी अकलियतों के लिए इस मुल्क में हो कुछ नहीं रहा। खैर, ये बात लंबी हो जाएगी। पाक बहरिया के मौजूदा सरबराह का नाम बताइए। बड़े अफसोस की बात है अगर नहीं आता तो। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी। ऐसी चीज जो खाने के बाद खाई जाती है, ज्यादा खाई जाए तो बीमारी की वजह बन जाती है। इसकी मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं। इसे खाने से कड़वाहट दूर हो जाती है। इसकी दुकानों पर नमकीन चीज नहीं होती। क्या है वो चीज? यार इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है दोबारा पूछेगा, सवाल रिपीट कर दें। यार। ऐसी चीज जो खाने के बाद खाई जाती है, ज्यादा खाई जाए तो बीमारी की वजह बन सकती है, मुख्तलिफ अकसाम की पाई जाती है, इससे खाने की कड़वाहट दूर हो जाती है। जबर ने बजाया। मीठा। चीनी। जी बिल्कुल, मीठा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर मुश्किल सवाल पूछें, कोई कोई सवाल आसान भी होता है। 8वां सवाल नहीं, लास्ट 2 नहीं मेरा भाई, लास्ट 3। 3 सवाल रह गए। वो कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान अपने कान तक पहुंचा सकता है? अपने कान तक, दूसरे के कान तक नहीं। यार अपनी जुबान अपने कान तक पहुंचा सकता है एक ही जानवर है, जितना खुद लंबा उतनी जुबान लंबी। सबने बजा दिया, इस पर मार्क्स नहीं दूंगी। जबर बताओ। जराफा। जराफा जवाब दुरुस्त है, +10। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया, मर्द या औरत? किसने बजाया भाई? ज़ेर। मुमताज की याद में मर्द या औरत?
औरत की। क्या बात है यार। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक से मिलती हैं? पेश 5 नाम बताइए। ईरान, हम्म, चीन, हम्म, अफगानिस्तान हम्म। और हिंदुस्तान। 4 तो 5 कैसे बोला? वो -10 करो, इसने बोला 5। बताइए जी स्कोर। टीम जेर का स्कोर है 40, टीम जबर है और टीम पेश है, टीम पेश के हैं 50 मार्क्स। और आप फंस सिर्फ इसलिए गए क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान की सरहद 5 मुल्कों से मिलती है। वैसे तो जिन 4 मुल्कों से भी मिलती है, अच्छा हम ना उनके साथ कर रहे हैं ना वो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन 5 तो जवाब बिल्कुल गलत था मेरे भाई। जबर के हैं 60 मार्क्स और आज के विनर भी जबर वाले ही हैं, सैयद ऐन अली और सैयदा ज़ैनब ज़हरा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी तीनों टीम्स के साथ जा रहे हैं गिगली, कॉलगेट के गिफ्ट हैम्पर्स, कॉलगेट मिसवाक के गिफ्ट हैम्पर्स और एसके की जानिब से कुकिंग रेंज लेकर जा रही है टीम जबर खास तौर पर। बाकी आप सबके साथ सारे तहाइफ जा रहे हैं और नेचुरलाइज के मेरे ख्याल में तहाइफ है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये था हमारा आज का जेर जबर पेश और अब हम